name is Kirandeep Kaur and I'm student of MSc Vegetable Science. Here I have applied a trial on the topic effect of different levels of fertigation on cucumber cultivation grown under polyhouse. So I have sown the seeds on 2nd of Feb 2022 and the variety is hybrid variety, that is multi-star, that's the seeds name. And I have different objectives for this, and the number one is the growth parameters. I'm checking the growth of the plant height, leaf length and number of flowers per plant, days to 50% flowering. Along with it, I have also checked the yield parameters, in which I'm checking the fruit weight, fruit quantity, fruit quality. And the third parameter that I have taken is the quality, in which I'm checking the total soluble salts present in the cucumber, its pH, its acidity and all the levels that I'm checking. Along with this, I'm also checking the soil's health condition before and after the sowing of the cucumbers. So before I have taken the sample, and after I'll be checking the soil's present nutrients, that is present nitrogen content, potassium, phosphorus and all other organic matters present in the soil. मेरा नाम किरणदीप कौर है ਤੇ ਮੈਂ MSc ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਟਰਾਇਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਕੁੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਖੀਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਿਨਾ ਬੀਜ ਵਾਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਲਟੀ ਸਟਾਰ F1 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਲਾਏ ਸੀ 2 ਫੈਬਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਖੀਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਖੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ pH ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਖੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸੋਲਿਊਬਲ ਸਾਲਟਸ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ 'ਚ ਫੁੱਲ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੀਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੀਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋ ਖੀਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਇਸ 'ਚ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਂਟ, ਇਸ 'ਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਸਾਰੇ ਉਨੀ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਇਸ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬਾਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ, ਇਨਸੈਕਟਸ ਦਾ, ਪੈਸਟ ਦਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਬਲ ਡੋਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸੈਕਟਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ, ਨੈਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਸ ਇਨਸੈਕਟਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਆਪਣੇ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਫਰਦਰ ਹੈਲਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ भी बहुत अच्छा मिलेगा। गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर संदीप कुमार सिंह, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर वेजिटेबल साइंस। आज मैं आप लोगों को कुकुम्बर की खेती के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कुकुम्बर की जो सोइंग करते हैं वो आपको 2 फेब या 1 वीक ऑफ फेब में सोइंग करना है। दूसरी बात आती है आपको किस टाइप के बीज का यूज़ करना है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर मैंने रिजवान कंपनी है, उसकी एक वैरायटी है जो सीडलेस कुकुम्बर है, इसका नाम मल्टी स्टार है और इसका जो सीड रेट है वो नियर अबाउट 2 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर का यूज़ करते हैं। जो ये सीड है, सीड्स की कुछ एक क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि जर्मिनेशन परसेंटेज। जब हम बिजाई करते हैं, बिजाई करते वक्त जो सीड है, सीड को एक प्रॉपर डेप्थ में करना है। जिस सॉइल में हम बिजाई करेंगे वहाँ पर उसका जो डेप्थ है एक प्रॉपर डेप्थ होना चाहिए और सॉइल के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में मॉइस्चर होना चाहिए। देन तीसरी बात आती है कि जो आपकी ये क्रॉप है कितने दिन के बाद ये रेडी हो जाती है। क्रॉप लगाने के 50 से 60 दिन के बाद ये क्रॉप रेडी हो जाती है और लगाने के बाद 60 दिन के बाद आप पहला हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। फर्स्ट हार्वेस्टिंग से लेकर आप नियर अबाउट 8 to 10 हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये 8 से 10 वीक का समय लगता है इसमें। देन अगेन एक और आता है कि अगर आप पॉली हाउस के अंदर कुकुम्बर की खेती कर रहे हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहले आप राउंड ईयर कल्टीवेशन कर सकते हैं। दूसरा, जो आपका प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा
और बेटर क्वालिटी के प्रोड्यूस होंगे, और साथ ही साथ इफ़िशिएंट यूज़ में आपके जो रिसोर्सेज हैं लाइक लैंड और लेबर का अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप खेती करते हैं तो जो आपके सराउंडिंग एरिया में रूरल यूथ हैं या अर्बन यूथ हैं उनको आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। और पॉली हाउस में अगर आप खेती करते हैं तो आपको जो इंसेक्ट हैं, डिजीज़ हैं, उसके अटैक होने के चांसेस भी कम होते हैं। जब कुकुम्बर की आप खेती करते हैं पॉली हाउस में तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सॉयल हो वो थोड़ा सा सैंडी लोम सॉयल हो और उसका जो पीएच हो वो नियर अबाउट 6 से 7 होना चाहिए। देन जब आप क्रॉप की प्लांटिंग कर दिए, प्लांटिंग करने के बाद आपको ब्लैक पॉलीथीन शीट से कवर कर देना है। और जो ब्लैक पॉलीथीन शीट होगा इसका थिकनेस 25 से लेकर 30 माइक्रोन रखना है। देन इसके बाद आता है आपका फर्टिलाइज़र आप किस टाइप का फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। ज़्यादातर आपको वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है, ठीक है। ये एक कंपनी है श्रीराम पोषक जिसका हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जो इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास से 19 और 19 के रेशियो में है, ठीक है जी। देन जब इसलिए हम वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं ड्रिप लाइन में, क्योंकि अगर आप डाइअमोनियम फास्फेट या आप पोटास या सिंगल सुपर फास्फेट का यूज़ करेंगे तो जो इसकी पाइप है, ठीक है ना, जो इसकी पाइप है इसके पाइप में ब्लॉकेज हो जाएगा अगर आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगा तो आपकी जो ड्रिप लाइन है ये इसके टूटने के चांस, फटने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो फार्मर्स हैं, जो किसान वीर हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। श्रीराम नहीं, बहुत सारी कंपनियां हैं, सिंजेंटा हो गया, मोनसेंटो हो गया, ननहेम्स हो गया, डिफरेंट कंपनियां हैं जो कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, बनाते हैं। इसको आप फार्मर अपने फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। जब आप क्रॉप लगाते हैं, क्रॉप लगाने के 50 से 60 दिन के बाद फ्रूट आपके रेडी हो जाते हैं हार्वेस्टिंग करने के लिए, ठीक है ना। और आपका एक प्लांट से नियर अबाउट 3 से 4 किलोग्राम कुकुम्बर आपका प्रोड्यूस करेगा। नियर अबाउट आपका अगर एक हेक्टेयर की बात की जाए तो एक हेक्टेयर में 800 से लेकर 1000 कुंटल पर हेक्टेयर आपका जो कुकुम्बर है इसका प्रोडक्शन होगा। अगर आप पॉली हाउस कुकुम्बर की खेती करते हैं तो एक प्लांट से नियर अबाउट 3 से 4 किलोग्राम यील्ड प्रोड्यूस होगा और एक हेक्टेयर में 800 से लेकर 1000 कुंटल यील्ड प्रोड्यूस होगा। जब कुकुम्बर की आप खेती करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ों को दिमाग में ध्यान रखना है आपको, जैसे कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 50 से 60% होना चाहिए। और साथ ही साथ जब आप पॉली हाउस के अंदर एंटर करते हैं तो उसमें डबल डोर का प्रोविज़न होना चाहिए। जैसे ही एंट्री करेंगे तो एक डोर आपका क्लोज होना चाहिए और एक डोर आपका खुला होना चाहिए, जिससे आपका जो इंसेक्ट है और डिजीज़ है उसका जो इंसिडेंस होगा वो कम होगा। 1 किलोग्राम कुकुम्बर का जो प्रोड्यूस होता है, फ्रूट होता है, वो हम अपने कॉलेज में ही, यहाँ पर रिटेल डिपार्टमेंट है, वहाँ पर हम 30 रुपये किलोग्राम के हिसाब से सेल करते हैं। और अगर मैक्सिमम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो उसको हम जो लोकल मार्केट है वहाँ पर जाके हम लोग इसको सेल कर देते हैं। इस मार्केट में ले जाने के लिए या रिटेल ऑफिस में ले जाने के लिए हमारे पास एक अटेंडेंट हैं, अमनदीप सिंह। उनकी सहायता से हम जो अपना प्रोड्यूस है वो जाकर हम रिटेल ऑफिस में और लोकल मार्केट में जाके हम सेल कर देते हैं। Good morning everyone. I am Dr. Dilip Singh Kachwaya, Head Department of Agriculture. As Mata Gujri College Department of Agriculture is running various courses and one of them is BSc Honours Agriculture. And the vision of our Director Principal Dr. Kashmir Singh is to provide maximum practical knowledge to our students so they can learn all the things in agriculture field, and when they pass out they were also able to earn something from these technical skills. So now we are in our poly house where 2 crops are there. One is cucumber and another one is capsicum. Capsicum is grown in soilless cultivation, and both our students and faculty members are doing really hard work. And as far as Punjab condition is concerned, what I personally think that vegetables and fruits are the main crops which will diversify the crops and which will give more income to the farmers as compared to other crops.